ईरान में रजीम चेंज कर दी। इस जंग से 2 या 3 हफ्तों में निकल जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान से बात हो रही है, ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। ईरान के बड़े बड़े पुल उड़ा दिए हैं। आबनाए होर्मुज़ को महफूज बनाने जा रहे हैं। आबनाए होर्मुज़ दुनिया के लिए महफूज गुजरगाह होगी। Say that within 2 weeks, maybe 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, I think we're 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave. weeks. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया अमरीकी वक्त के मुताबिक कल रात 9 बजे कौम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर कौम से खिताब में ईरान से मुतालिक अहम तफसीलात देंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। कहते हैं हमें ईरान जंग के बाद नेटो के साथ ताल्लुकात का असर नौ जायज़ा लेना होगा। अमरीकी फ़ौज जल्द अपने तमाम मकासद हासिल कर लेगी। यह ऑपरेशन गैर मामूली महारत के साथ अंजाम दिया जा रहा है। यह मिशन जदीद तारीख के बेहतरीन और कामयाब टेक्निकल फ़ौजी ऑपरेशन में शुमार होगा। ईरान की मिसाइल सलाहियत सदर ट्रंप की कार्रवाइयों ने रोकी। हमारे पास जल्द ही क्यूबा के बारे में खबरें होंगी। ईरान जंग के 5वें हफ्ते में हम फिनिश लाइन देख सकते हैं। आज या कल नहीं, लेकिन जल्द ईरान जंग खत्म हो जाएगी। All about. I always say Iran. Let me be clear. I'm not talking about the people of Iran. The people of Iran don't even like this government or this regime. This is a regime that is led by radical Shia clerics, by people who believe that it is their calling. I know this sounds fantastical, but it's absolutely true. This is a regime led by people who believe that it is their calling and their purpose in life to usher in the end of the world. These people want nuclear weapons. Why do we know that? Because they are assembling all the things you need for nuclear weapons. They're assembling long-range rockets that can eventually reach the United States, can already range Europe. We saw them demonstrate 2 of them last week, despite denying that they had them. They enriched uranium to 60%. As you pointed out a moment ago, from 60 to 90%, which is what you need for a bomb, takes 12 to 14 days. They bragged about still having that. They demand the right to enrich, which is how you get from 60 to 90%. They're the leading sponsor of terrorism, not in the region, in the world. They can never be allowed to have a nuclear weapon, which is what President Trump made very clear from the very first day of his presidency, in fact, from the very first day of his candidacy. When he came down that escalator in 2015, he talked about this. He's actually been talking about the threat of Iran before he was even a political candidate. And as president, he was not going to allow Iran to pose a threat to Americans now or future generations of Americans. So we had to act. And with very clear purpose. We are going to destroy their Air Force. We have largely done that. We were going to destroy their Navy, which we have largely achieved that. We were going to destroy a significant percentage of their missile launchers. We are well on our way to achieving that. And we were going to wipe out their defense industrial base, meaning the factories that make the drones and the missiles. We are on our way to doing that. Those were our 4 objectives, because those are the 4 things they were going to hide behind to then develop a nuclear weapon and threaten the world if they tried to do anything about it. That was not going to happen under President Trump. We are well on our way. We are on or ahead of schedule on each of those 4 objectives, and we can see the finish line. It's not today, it's not tomorrow, but it is coming. We are going to get to the point where our military will have achieved all of its objectives in this mission, and they're doing so with extraordinary efficiency, something that I think will go down in history as one of the best run tactical military operations in modern times.
Sean, I've been one of the strongest defenders of NATO during my time as a United States Senator because I found great value in it. And it wasn't just about defending Europe. I said it also allowed us to have military bases in Europe that allowed us to project power into different parts of the world when our national security was threatened. If now we have reached a point where the NATO alliance means that we can't use those bases, that in fact that we can no longer use those bases to defend America's interests, then NATO is a one-way street. Then NATO is simply about us having troops in Europe to defend Europe, but when we need their help, not their help, we're not asking them to conduct airstrikes. When we need them to allow us to use their military bases, their answer is no. Then why are we in NATO? You have to ask that question. Why do we have billions and billions of dollars, hundreds of billions of dollars, over the years, trillions of dollars, and all of these American forces stationed in the region? If we can only use, in our time of need, we're not going to be allowed to use those bases. So I think there's no doubt, unfortunately, after this conflict is concluded, we are going to have to re-examine that relationship. We're going to have to re-examine the value of NATO and that alliance for our country. Ultimately, that's a decision for the president to make, and he'll have to make it. We're going to finish the job here. As I said, we're very, very close to achieving our objectives on all of these things that I've outlined. But I do think, unfortunately, we are going to have to re-examine whether or not this alliance that has served this country well for a while is still serving that purpose, or is it now become a one-way street where America is simply in a position to defend Europe, but when we need the help of our allies, they're going to deny us basing rights and they're going to deny us overflight? I think these are very legitimate questions that we need to be asking, and this are going to have to be very carefully examined after this conflict is over. नए हुर्मुज़ जंग के बाद पुरअमन आबी गुजरगाह बन सकती है। जंग के बाद ईरान और ओमान इसका फैसला करेंगे। हम खित्ते और खित्ते से बाहर अपने दोस्तों को मद्देनजर रखेंगे। दोस्तों के लिए यकीनी बनाया उन्हें महफूज रास्ता मिले। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा अमेरिका के 15 निकात का कोई जवाब नहीं दिया। जंग बंदी कबूल नहीं, जंग का खात्मा होगा। मुझे पहले की तरह विटकॉफ से बराह रास्त पैगामात मौसूल होते हैं। पैगामात के तबादले का ये मतलब नहीं कि ईरान वाशिंगटन से मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कभी अच्छा तजर्बा नहीं रहा। अमेरिका ने 2 बार मुज़ाकरात किए और उसका नतीजा हमले की सूरत में निकला। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका में अहम ईमानदारी नहीं देखते। हम अमेरिकी अफवाज का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता अमेरिकी फ़ौज ज़मीनी कार्रवाई की हिम्मत करेगी। ज़मीनी जंग हुई तो हम और भी बेहतर तरीके से दिफा कर सकते हैं। हमने ये जंग शुरू नहीं की थी, अपना दिफा किया है। Received messages from the US. Some are direct, some are through some of our regional friends. And wherever it is necessary, we reply to these messages. And Mr. Witkoff has sent messages directly. However, no negotiation has taken place, and the reports about that are not accurate. We have not given any response to that 15-point proposal from the US. And from our side, there has been no proposal either. You see, with the Strait of Hormuz, the reality is that it's in Iran's and Oman's territorial waters. It's not in international waters. It's in our territorial waters and Oman's. So it's ordinary for Iran and Oman to use these waterways strategically. As of now, we believe the strait to be open. Only for the ships of those who are at war with us, this strait is closed. That is normal during war. We cannot let our enemies use our territorial waters for commerce. Now, what will happen after the war? That's something that will be for Iran and Oman to decide. And we will take into consideration our friends in the region and beyond the region. In our opinion, the Strait of Hormuz can be a peaceful waterway for peaceful use by vessels from countries around the world. We are completely ready to confront any sort of ground attack. We hope they do not make such a mistake. ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अफवाज से इजहार यकजहती की रैली में शिरकत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी अफवाज से इजहार यकजहती की रैली में शिरकत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अवाम में घुल मिल गए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट कहते हैं सदर ट्रंप अफगानिस्तान और इराक का तजर्बा दोहराना नहीं चाहते। ईरान में ज़मीनी कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। ज़रूरत पड़ी तो 15 मकामात पर ज़मीनी कार्रवाई कर सकते हैं। आबने हुर्मुज़ सिर्फ हमारा मसला नहीं, दुनिया को आबने हुर्मुज़ के लिए काम करना चाहिए। ईरान के लिए बेहतर होगा अगर कोई मुआहिदा हो जाए। ईरान ने मुआहिदा मुस्तरद किया तो मज़ीद सख्त हमला करेंगे। ईरान समझदार है तो मुजव्वज़ा मुआहिदे पर रज़ामंद हो जाएगा। Right now thinks there are 15 different ways we could come at them with boots on the ground. And guess what? There are.
So if we needed to, we could execute those options on behalf of the President of the United States and this department. Or maybe we don't have to use them at all. Maybe negotiations work, or maybe there's a different approach. But the point is to be unpredictable in that. Certainly not let anybody know what you're willing to do or not do. But if anybody has internalized the lessons of Iraq and Afghanistan as the first one, President Trump, to call them out for what they are, he's not going to repeat those lessons. And I think I've been very clear about that from the podium. ईरान पर इसराइली और अमरीकी अफवाज के ताज़ा हमले। ईरानी मीडिया ने शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमलों की तफसीलात जारी कर दी। बताया इस्फहान में मुबारक स्टील इंडस्ट्रीज़ को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास में शहीद हकाने पोच पर हमला किया गया। चहार महल और बख्तियारी में प्लेन वाइट स्टील कॉम्प्लेक्स पर फ़िज़ाई हमला हुआ। वो शहर में मौसमियाती सहूलियात के सेंटर पर हमला किया गया। ईरान के खिलाफ जारियत और तेल पर कब्जा करना अमरीकी ख्वाब है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमरीकी वजीर खारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इसराइल को हथियार फराहम करना और कई नए गजा तख्लीक करना अमरीका का ख्वाब है। ईरान अमरीका को मकासद में कभी कामयाब नहीं होने देगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान में बड़े हमलों का दावा। ज़ेरे ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने बताया, अमरीकी अफवाज ने ईरान के अंदर गहराई में मौजूद ज़ेरे ज़मीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई में जदीद प्रेशर मोनीशिज़ा इस्तेमाल किए गए। हमलों का मकसद ईरानी निज़ाम की बैरून मुल्क असरअंदाज होने की सलाहियत को कमज़ोर करना है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिका की ज़मीनी कार्रवाई की धमकी। ईरानी फ़ौज ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। ईरानी फ़ौज ने अमेरिकी फ़ौजियों को पैगाम दिया कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ईरानी मीडिया ने अमरीकियों के मुंतज़र ईरानी फ़ौजियों की वीडियो जारी कर दी। ईरानी फ़ौज ने अबरानी, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में पैगाम जारी किया। वीडियो में ईरानी अफवाज की दिफाई, जंगी सलाहियतों और मशकों को दिखाया गया है। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले को कुवैती सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान कुवैती सिविल एविएशन के मुताबिक ड्रोन हमले में ईंधन के टैंकर्स को निशाना बनाया गया, जिसके बाद शदीद आग भड़क उठी। हंगामी टीमों ने फौरी कार्रवाई करके सूरत हाल पर काबू पा लिया है। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। दोहा के करीब ऑयल टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने बताया, हमले में जहाज को जुज़वी नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। वाकया कतर के दारुल हुकूमत दोहा के शिमाल में 17 नॉटिकल मील दूर पेश आया। ड्रोन हमले में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। ऑयल टैंकर पर हमले से माहौलियाती नुकसान की भी कोई इत्तला सामने नहीं आई। हुकाम की जानिब से वाकये की तहकीकात जारी हैं। समंदरी जहाज़ों को इलाके में मोहतात रहने और मशकूक सरगर्मी रिपोर्ट करने की हिदायत। बगदाद में खातून अमरीकी सहाफ़ी शेली कटलसन के अगवा से आगाह है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, सहाफ़ी की बाजियाबी के लिए FBI के साथ राब्ता जारी है। अगवाकारों का ताल्लुक ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया कताइब हिज़्बुल्लाह से है। अगवाकारों के गिरोह के एक शख्स को इराकी हुकाम ने हिरासत में ले लिया। अमरीका के शहरियों को इराक ना जाने और फौरी निकलने की हिदायत। लेवल 4 ट्रैवल एडवाइजरी बरकरार है। सहाफ़ियों समेत तमाम अमरीकियों को सफरी हिदायत पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया है। अमरीकी खातून सहाफ़ी के अगवा की CCTV सामने आ गई। CCTV फुटेज में मुसल्लह अफराद को अमरीकी खातून सहाफ़ी को अगवा करते हुए देखा गया। वाक़या बगदाद में सादून स्ट्रीट पर फ़लस्तीन होटल के करीब पेश आया। चीन और पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए 5 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। फौरी जंगबंदी और कशीदगी खत्म करने का मुतालबा। बीजिंग में इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात में जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया गया। ईरान और खलीजी मुल्कों के खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल की धमकी से गुरेज की तलकीन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बताया, पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर भी बात हुई। CPAC-2 समेत स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। दफ्तर ख़ारिजा ने बताया, इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा भी राबता हुआ। पाक तुर्की ताल्लुकात की मजबूती के आज़म राबते बहाल रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चीनी दोस्तों की दोस्ती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को आराम की खातिर एक दिन के लिए रोक लिया गया। नायब वज़ीर आज़म के बेटे अली डार ने ट्वीट किया, अल्लाह ताला पाक चीन दोस्ती को इसी तरह शाद और आबाद रखे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा नायब वज़ीर आज़म को कह रहे थे, आपको वापस नहीं जाना, रात बीजिंग में आराम करें, सुबह वापस पाकिस्तान जाएं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने नायब वज़ीर आज़म को बीजिंग में रोकने पर कायल किया। खाने के बाद स्टेट गेस्ट हाउस में डॉक्टर्स की टीम भी भेजी गई। डॉक्टर्स की टीम नायब वज़ीर आज़म के तिबी मुआयने के लिए भेजी गई थी।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीनी हम मनसब वांग शी का शुक्रिया। दौरे चीन में पुरतपाक मेहमान नवाजी पर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। इसहाक डार की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि दौरे चीन में पुरतपाक मेहमान नवाजी पर वो दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने और वजारत खारजा ने दौरे को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। वजारत खारजा पाकिस्तान की पेशा महारत और भरपूर ताउन काबिल सताइश है। पेशा वराना महारत और टीम वर्क की बदौलत दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा है। कतर का पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने उम्मीद जाहिर की पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम लाएंगी। कहा कतर सालसी कोशिशों में शामिल नहीं है, सारी तवज्जो वतन के दिफा पर मरकूज है। ईरान के वाटर प्लांट्स पर हमला इलाकाई सलामती के लिए खतरनाक होगा। आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तकबिल पूरे खित्ते की मुशावरत से तय होना चाहिए। And the international partners to decide collectively. One party cannot decide this on their behalf. Condemn all attacks on civilian infrastructure as completely unnecessary and very dangerous for the whole region. We have warned against targeting vital civilian infrastructure. We have said it very clearly that this is a threat to all of us in the region. This region depends heavily on desalination. I've always said also that we support and welcome diplomatic initiatives around the world that are working with both parties to find an end to this. The sooner we get to the negotiation table, the better it is for all the peoples of the region. कराची पोर्ट कासिम पर पेट्रोली मसनूआत के जहाज़ों की आमद का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब की बंदरगाह जैजान से पेट्रोल से भरा एक और जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक जहाज़ 38,965 टन मोटर ऑयल लेकर पहुंच गया। पोर्ट कासिम आउटर एंकरेज पर कोयले के 2 और पाम ऑयल का एक जहाज़ लंगरअंदाज हुआ। पोर्ट कासिम पर गुज़श्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 10 जहाज़ों की हैंडलिंग, कंटेनर के 2, बल्क कार्गो के 5 और पेट्रोलियम मसनूआत के 3 जहाज़ लंगरअंदाज हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में 8 जहाज़ों की आमद, 2 रवाना हुए और मज़ीद 3 जहाज़ों की रवानगी मुतवक्के है। मर्दान में माइनिंग के दौरान धमाका, 9 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए, 3 कारकुन जख्मी हुए। रुस्तम पलोडरी के बकार पहाड़ पर सिंगमरमर निकालने के दौरान धमाका हुआ जिसके नतीजे में पहाड़ी तोदा गिर गया। लैंडस्लाइडिंग के वक्त 12 मजदूर कानकनी में मसरूफ थे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू का अमला हैवी मशीनरी समेत मौके पर पहुंचा और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 1 मजदूर की तलाश जारी है। वज़ीर आला केफी सुहेल आफरीदी ने मर्दान माइनिंग हादसे का नोटिस ले लिया, कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया और मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत की। वज़ीर आला ने वाक़े की वजूहात जानने और हिफाजती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म दिया। कहा माइनिंग में सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाए। डीआई खान में मुखालिफों की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूल छीने गए मोटरसाइकिल वापस लेने आए थे। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया गुज़श्ता रात 3 मोटरसाइकिल छीने गए थे। मकतूल मोटरसाइकिल की तलाश के लिए आए तो मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। बोसन रोड मुल्तान पर निजी शॉपिंग मॉल के बाहर फायरिंग की गई, 1 शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक ताहिर अंसारी नामी नौजवान बीवी के हमरा खरीदारी करके निकला था। पीछे से आने वाले नामालूम शख्स ने नौजवान के सर में गोली मार दी। गोली लगने से ताहिर अंसारी मौके पर ही दम तोड़ गया। हमलावर मौके से फरार हो गया। मकतूल की लाश निश्तर अस्पताल मुंतकिल, कत्ल की सीसीटीवी जारी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मुलाकात कराई गई। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 35 मिनट जारी रही। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खानम, नौरीन खान, अजमा न्याजी नहीं मिलने दिया गया। बहनों ने खपूना के साथ घंटे तक धरना दिया। अलीमा खानम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी की रिहाई के लिए प्रेशर बढ़ाना है, एहतजाज करना बुजुर्गों का काम नहीं, इसलिए बानी ने सुहेल आफरीदी को जिम्मेदारी दी। 10,000 कारकुन और अहदेदारों के यहाँ बैठने तक प्रेशर नहीं पड़ेगा। अलीमा खानम ने बताया 1 दिन में 10,000 कारकुनों ने रिहाई फोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा ली है। जो एहतजाज है हमारे जैसे बुजुर्गों का काम तो नहीं है ना, इसलिए इमरान खान को पता है कि किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी, वो इमरान खान ने सिर्फ सुहेल अफरीदी को दिया। अच्छा, इतनी बड़ी पार्टी है, सिर्फ 10,000 लोगों ने रिहाई मन फोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो ये भी सवालिया निशान है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। 10,000 बहुत बड़ा नंबर है। एक दिन में 10,000 जरा और किसी पॉलिटिकल पार्टी से चेक कर लो, अगर उनके पास एक बंदा भी रजिस्टर हो जाएगा। और बैठना तो बैठना पड़ेगा, प्रेशर डालना है।
हमने पीटीआई को कॉल दिया, हमने लोग पाकिस्तान को नहीं कॉल दिया, हमने सिर्फ पीटीआई को कॉल दिया। पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो खान के बेटों की हिमायत नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है, सबसे पहले पाकिस्तान। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा पहले बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी गई, अब बुशरा बीबी की मुलाकात बंद हो गई। हुकूमत यहाँ तक गिर जाती है तो ये मसला बहुत गंभीर हो जाएगा। पीटीआई नहीं चाहती मुल्क के हालात ख़राब हों। साहब के बेटों ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, ना हम कोई बात करेंगे, ना कभी वो बात करेंगे, और खुदा न खास्ता उनके बेटों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तो ये कोशिश कर रहे थे कि जो मसाइल सियासी हैं उनका सियासी हल हो, लेकिन कुछ लोग ना सियासी हल चाहते हैं ना अदालती हल चाहते हैं। साहब के आंख का मसला हो गया, बुशरा बीबी की भी आंख का मसला है। अगर यहाँ तक गिर जाते हैं हम कि ये मुलाकात भी नहीं होने दे रहे, ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, ये मुल्क अलमिया में चला जाएगा। हम नहीं चाहते कि मुल्क के हालात खराब हो। बानी पीटीआई की एहलिया की आंखों का मरज पेचीदा नहीं, डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी के लिए करीब की नज़र का चश्मा, दवाएं और एहतियाती तदाबीर तजवीज़ कर दी। अस्पताल ज़राए का कहना है ढलती उम्र में बिनाई के मसाइल गैर मामूली बात नहीं। जेल इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर पिम्स के डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की आंख का मुआयना किया है और बताया पत्ती और पर्दा शफाफ है। आंखों में मोतिये की तस्दीक नहीं हुई, दाईं आंख में धब्बा तशवीशनाक नहीं है, दवाओं से ठीक होने का इम्कान है। बुशरा बीबी ने डॉक्टर्स को सर और आंखों में दर्द की शिकायत की थी। नामवर गुलकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत का केस जीत गए। लाहौर की सेशन अदालत ने मीशा शफी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मीशा शफी इल्ज़ाम साबित न कर सकीं। मीशा शफी के हिरासा करने के इल्ज़ाम पर अली जफर ने 2018 में हत्या के इज्जत का केस दायर किया था। जफर ने जो हत्या की इज्जत का दावा किया था अगेंस्ट मीशा शफी, वो कोर्ट ने डिग्री कर दी और 50 लाख रुपए की डेमेज दे दी। और कोर्ट ने कहा कि ये प्रॉपर्टीज़ पे डिसाइड किया है कि जो एविडेंस आया उससे ये प्रोबेबल नहीं है कि जो एलिगेशन मीशा शफी ने अली के अगेंस्ट लगाया है वो सच था। उम्मे रुबाब केस फैसले पर फायरिंग करने वाले कई अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान के मुकदमा कत्ल से बरी होकर दादू पहुंचने पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। थाना कंबर में मुकदमा दर्ज, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। चांडियो बरादरान का कहना है कि वो हवाई फायरिंग करने वालों को रोक रहे थे। कराची इंतजामिया ने डेयरी फार्मर्स के आगे घुटने टेक दिए। दूध की कीमत में फी लीटर 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। दूध की कीमत 220 रुपए लीटर से बढ़ाकर 240 रुपए लीटर कर दी गई। दूध की कीमत में फी लीटर 20 रुपए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की फी लीटर कीमत 215 रुपए मुकर्रर की गई है। होलसेलर्स के लिए दूध की फी लीटर कीमत 225 रुपए मुकर्रर की गई है। कराची में घग्गर फाटक पर डकैती के खिलाफ दुकानदारों ने धरना देकर कौमी शाहराह बंद कर दी। मुजाहिरीन के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं ने घग्गर फाटक पर दुकानों में लूटमार की और होटलों पर ग्राहकों से नकदी मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। दुकानदारों के एहतजाज से कौमी शाहराह पर दोनों ट्रैक बंद हो गए और कराची ठट्ठा ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। कराची समेत सिंध भर में आज से तालीमी इदारे खुल गए हैं। तातील रात के बाद आज से स्कूलों में तदरीसी अमल बहाल हो गया है। मजीद बताएंगे आसिफ खान। अप्रैल से जो तमाम तालीमी इदारे हैं वो खोल दिए गए हैं। हम एक स्कूल के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो तलबा और तालिबात हैं वो यहाँ पर स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी खुश हैं और बच्चों का कहना ये है कि उन्होंने जो छुट्टियाँ हैं वो अपनी पढ़ाई में गुजारी और बेशतर स्कूल ऐसे हैं कि जहां पर आज वो रिजल्ट का डे है। छुट्टियों के दौरान जो जुज़वी तौर पर ऑनलाइन तालीमी निज़ाम था उसको जारी रखा गया और नए तालीमी सेशन की भी तैयारी की गई। आज से जो तमाम तालीमी इदारे हैं वो खोल दिए गए हैं। कराची समेत सिंध भर के तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो आज से खोल दिए गए हैं। 10 मार्च से 31 मार्च तक ये तालीमी इदारे बंद किए गए थे 3 हफ्तों के लिए और आज यानी 1 अप्रैल से कराची समेत सिंध भर के जो तमाम तालीमी इदारे हैं वो आज से खोल दिए गए हैं। स्कूल्स में भी जो बच्चे हैं उनकी काफ़ी बड़ी तादाद इस वक्त स्कूल में आते हुए दिखाई दे रही है। पंजाब भर में छुट्टियों के बाद आज से तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो रहा है। तातीलात के बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए हैं। मजीद बताएंगे ख्वाजा रमज़ान मजीद।
जो है वो छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। आज 1 अप्रैल है और आज पहला दिन है। बच्चे फिर से दोबारा उन्होंने अपना स्कूल जो ज्वाइन किया है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं। आगे 9वीं 10वीं के बोर्ड के रिज़ल्ट हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वो रिज़ल्ट बहुत अच्छे हो और हम तो यही कहेंगे कि छुट्टियाँ मुसलसल कम की जाए, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई से काफ़ी डिस्टर्ब हो जा रही है। स्टूडेंट हैं, आज उनका पहला दिन है और जो छुट्टियां की गई थी उसके बाद स्कूल जो है वो खुल चुके हैं, लेकिन तादाद सवेरे ना होने के बराबर है। इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि स्कूल 8:30 बजे के बाद जो है वो उनका टाइम दिया गया है और इसके साथ साथ आज पहला दिन है, इस वजह से भी कुछ तादाद कम नज़र आ रही है। जी। पाकपतन के नवाही गांव में फूड अथॉरिटी टीम पर हमला करके एहलकारों को यरगमाल बना लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुलजिमान ने फूड अथॉरिटी की खातून एहलकारों पर बदतरीन तशद्दुद किया। फूड अथॉरिटी के एहलकारों पर तशद्दुद की वीडियो ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। छापे के दौरान मुलजिमान ने असलहे के जोर पर सरकारी कार्रवाई में मुदाखलत की। फूड अथॉरिटी टीम ने कलेक्शन सेंटर से 1000 लीटर जाली दूध बरामद किया था। मुलजिमान सरकारी अमले से नकदी और मोबाइल फ़ोन भी छीन कर फरार हो गए। DPO जावेद चौधरी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। लाहौर के मियो अस्पताल में सरकारी रिहायशी फ्लैट खाली न करने पर साबिक चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ताहिरा परवीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरखास्त कर दी गई है। वकील तालिब हुसैन की जानिब से दी गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ताहिरा परवीन का तबादला कई साल कबल DG नर्सिंग के ओहदे पर हो चुका है, ताहम वो ताहाल मियो अस्पताल की सरकारी रिहाइश का खाली करने को तैयार नहीं। दरखास्त गुजार के मुताबिक कानूनी तबादले के बाद फ्लैट खाली करना लाजिम है, जबकि यहाँ बिजली और गैस का भी गैर मजाज इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए ताहिरा परवीन से रिकॉर्ड और यूटिलिटी बिल्स की तफसीलात तलब कर ली। CEO डॉक्टर मुदब्बर रेहान का कहना है कि कवायद पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब ताहिरा परवीन का कहना है कि वो बिल्स की अदायगी के लिए तैयार हैं और तैनाती ना होने के बावजूद रिहाइश रख सकती हैं। सीनियर नर्सिस का कहना है कि सरकारी फ्लैट ना मिलने पर हमारी हक तलफी हो रही है। HPL PSL का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पर जोश। बासित अली कहते हैं फ़खर जमान पर इल्ज़ाम तस्लीम ना करने की वजह से 2 मैच की पाबंदी लगी, मान जाते तो 1 मैच की ही पाबंदी लगती। कामरान अकमल ने कहा फ़खर ने समात में जाने का फैसला किया तो बात बढ़ गई और 2 मैचों की पाबंदी लग गई। आप लोगों की भरपूर तालियां हमारे दो अहमद रंधावा के लिए बहुत सारे चैलेंज करा था ना, हाँ, उसमें 2 मैचों की पाबंदी लगी। अगर वो पहले एडमिट कर लेते तो 1 मैच की पाबंदी लगी। फखर ने डिनाई कर दिया। हेयरिंग पे जाऊंगा, नेक्स्ट डे जाके हेयरिंग हुई है, फिर 2 मैचेस की हुई, 1 मैच की पहले सजा थी। फखर एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ मुझसे गलती हो गई तो बाकायदा हियरिंग भी नहीं होती और वो एक ही मैच का बैन होता। हमारे दरमियान आज ऑडियंस में कोरियन मार्शल आर्ट्स यानी कि ताइक्वांडो के बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा हुआ आपने बता दिया ताइक्वांडो। आपको क्या लगा? मुझे लगा अफसोस के लिए आए। मैंने बचपन में बहुत कराटे सीखे वसीम, मगर जब मैं मोहब्बत की खातिर कहीं गया तो काम नहीं आया। मुझसे ज्यादा तो आजकल टिकटॉकर्स कमा लेते हैं। यू थिंक सो? हाँ। यंग लॉट में आपके फेवरेट अदाकार डैश है बिलाल अब्बास खान। ये दिल कयाम गा भी है, रास्ता भी है। अच्छा, तेरी नजर में बहुत मुख्तलिफ हूँ मैं। यानी तेरी नजर में कोई दूसरा भी है। वाह वाह। हम अनाम बस तही दस्त बहुत है मोहसिन, ये अलग बात है कि आदत है अमीरों जैसी। ओह, तेरी मोहब्बत मेरी नजर में इस तरह की है जैसे हो शहद में कावा। तू मेरा भाई है अहमद रंधावा। वाह वाह। आ सकते हो मेरी जान तो चले आओ। जी सर। कभी अकेले किसी से मिलने मत जाओ। वाह। हैदराबाद और मुल्तान का पहला मैच है। हैदराबाद वर्सेस अच्छा मुल्तान चूज कर। मुल्तान। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी है। हुकूमत के मुताबिक 16 साल से कम उम्र बच्चों को गैर अखलाकी मवाद फराहम करने वाली समाजी वेबसाइट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाजी प्लेटफॉर्म्स कानून पर अमल दरामद के वादे के बावजूद कम उम्र बच्चों को मुतनाज़ मवाद तक रसाई फराहम कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही।